Very good morning, students of class 10th. Here I am Poonam Prasad again with the chapter number 4 of your social science, subject economics, globalization, and the Indian economy, the last chapter of your economics, right? Students, in our earlier class or earlier video, we came across the definition of your chapter, that is we dealt with the definition of globalization, and a very brief we have learnt about what exactly the globalization meant. Students, in today's topic we are going towards production across the countries. It means the countries produces globally, or the company produces globally, and interlinking the products across the countries. It means the exchange of goods and services from different countries, among different countries. Fine, students. So let's we start our class or the lecture today with the topic production across the countries. Students, this particular topic is quite important. Reason: we are going to have a brief knowledge about what exactly MNCs meant. Multinational companies. A multinational corporation is the name of MNCs. Students, enormous examples are there. Nokia, Samsung, Nike, Panasonic, Sony Ericsson is there. Oppo, fine. You can say Adidas. All these are considered. Why these companies are important? मैं इन companies का नाम क्यों दे रही हूँ? ये companies, why I am naming these companies? The reason behind that these companies are MNCs. ये companies MNCs हैं. Foreign companies ये MNCs, ये companies foreign companies हैं जो भारत में produce या production कहाँ area है? That is your India. इनका marketing area क्या है? India. Student, so what is exactly MNC meant? MNC is a company. It is a company which owns or which controls production. Students, kindly listen to this particular point, that it owns or it controls production more than one nation. ये एक देश या उससे ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्शन हाउसेस को ओपन करते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दे हैव ओपनड आउट. वो मार्केटिंग करते मोर देन वन नेशन. वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे तो करते ही हैं, बट वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में सप्लाई कर रहे हैं. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज MNCs. Thus these are called as MNCs. So examples I have already given you. Student, one more example is there, and example like MNC which can have industries in Vietnam. एक MNC है. For example, the MNC named A. Fine. वो have industries in Vietnam. उनकी वियतनाम में इंडस्ट्रीज़ है. Why they are having industries in Vietnam? वो MNC है. अमेरिकन, फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिकन बेस्ड MNC है. वो उनका इंडस्ट्रीज़ वियतनाम में है. वाई? बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट. बिकॉज ऑफ द लेबर इज़ वेरी लो. लेबर कॉस्ट जो है, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में पढ़ा था अबाउट द जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स आर देयर, है ना. तो उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि लेबर जो कॉस्ट है या लेबर जो है, दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट, है ना. तो जो वो लेबर्स, दैट इज़ अ स्किल बट in a very low cost. Availability of labor is there, skilled laborers are there. They have a call centers or they have a technical support where in India. This is quite important. एक company, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया वियतनाम में. उन्होंने असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, कॉल सेंटर्स के लिए उन्होंने इंडिया को चुना. वाई? बिकॉज इंडियन इंग्लिश इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और इंडिया की जो लैंग्वेज है वो ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है. और देयर जो इंडियन आर
plenty of quality employees are there. Workforce जो है, manpower of India is quite important. It is quite important in terms of its asset. कम wages में, cheaper rates में, these employees are available to the MNC. यहाँ पे MNC क्या करती है बेटा, वो अपने profit के लिए, because maximum input, minimum input to gain more and more output. और आउटपुट क्या है किसी भी एमएनसी का, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. इज दैट क्लियर? तो यानी आपने देखा कि किस तरीके से एक कंपनी जो है वो कंपनी चीपर रेट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में, यहाँ पे तो एक एमएनसी जो अमेरिकन बेस्ड एमएनसी है उन्होंने वियतनाम और उन्होंने चुना किसको, इंडिया को, फॉर इट्स प्रोडक्शन, फॉर इट्स assistance, technical assistance, right? So this is all about the MNC's children. In the next slide, we are going to have the next topic, that is interlinking products across the countries. आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4, foods, clothes, agriculture products, they became a medium through which the process of globalization took place. Fine. इंडिया एक्सपोर्ट करता था चीप रेट में फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल टू द डिफरेंट कंट्रीज, और इंपोर्ट करता था फिनिश प्रोडक्ट एट अ हायर रेट. तो वो एक्सप्लॉयटेशन था इन अ कॉलोनियल पीरियड, राइट? But in this we are dealing with the very important issue कि how does MNC operates its functionaries, or how does it plays a role or set up or control production in different countries. यहाँ पे MNCs we have learnt about the definition of MNC. अब ये MNC जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ को. स्टूडेंट, मेक इट श्योर दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. बेटा, MNCs it exert, the spelling is it exert, the word is called as EXERT, EXERT. It exert the influences on, it exerts its dominance, you can say, influences on production at distant location. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल वियतनाम एंड इंडिया. फाइन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन ऑफ दीज आर वाइडली डिस्पर्ड लोकेशंस गेट इंटरलिंक्ड. किसी ना किसी तरीके से ये इंडिया जुड़ा वियतनाम से और इंडिया जुड़ा किससे, अमेरिका से, क्योंकि एमएनसी बेस्ड किसकी थी, अमेरिकन की. उसी तरीके से वियतनाम भी कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़ा, इंडिया से जुड़ा, और चूँकि एमएनसी किसकी थी, अमेरिका की, तो अमेरिका भी जुड़ा किससे, वियतनाम से और इंडिया से. सो वी जस्ट सी दैट द एमएनसीज इट exert the influence on dispersed location where it gets interlinked. बेटा, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है it is widely dispersed and the location gets interlinked. It means enormous areas are interconnected with each other. और यही कहलाता है वैश्वीकरण, यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. दूसरा इम्पॉर्टेंट जो रूट्स हमने पढ़ा, उसमें रूट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एमएनसीज किस तरीके से कंट्रीज़ में आती हैं. डायरेक्टली एमएनसीज आती हैं, वो ऐसा नहीं कि सबसे पहले तो जब एमएनसीज आएंगे तो व्हाट दे वांटेड टू सी, उनको चीप लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉजिटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चाहिए. क्योंकि एमएनसी चूँकि फॉरेन कंपनीज़ हैं तो वो किसी भी कंट्री में एट रैंडम जाके बेटा सेटअप नहीं होगी. उसके लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, है ना. उसको ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट को लेकर हम दूसरे कंट्री में जा रहे हैं
क्या वाकई में वो प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा? जैसे भारत में चाइनीज़ टॉयज़ हैं, भारत में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जो चाइना बनाता है या जापान बनाता है, अमेरिका बनाता है, वो भारत के इलेक्ट्रिसिटी पावर को होल्डिंग कर पा रहा है या नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो MNCs ये चेकआउट करती हैं, है ना बेटा। अब जो फोर्ड कंपनी है वो भारत के लिए, भारत की सड़कों के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे अपने 4 व्हीलर्स, राइट। लेकिन वही फोर्ड अमेरिका और अमेरिकन सड़कों के लिए, उनके रोड्स के लिए वो अलग तरीके से मैन्युफैक्चर करेंगी। तो हम कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे हैं। तो जब वो किसी कंपनी, जब MNCs किसी कंट्री में जाती हैं तो स्पेसिफिकली वो कुछ रूट्स को फॉलो करती हैं। रूट्स का मतलब सबसे पहला यूजुअली वो जो लेती हैं वो प्रोड्यूसर्स जो हैं लोकल मार्केट के, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वो अपने प्रोडक्ट्स को दे प्लेस्ड द ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर प्लेस करती हैं, बट अंडर देयर ओन, अंडर द MNC's ब्रांड। MNC गई, फॉर एग्जाम्पल A MNC है, वो गई, वो भारत में आई, उन्होंने भारत के मार्केट को सर्च आउट किया, उन्होंने लोकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल द फुटवेयर कंपनी ऑफ अमेरिका, वो इंडिया में आई, उसने यहाँ के लोकल कंपनीज़ को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दे दिया। उन्होंने प्लेसेस ऑर्डर कर दिए कि मुझे 25,000 ये चाहिए, पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, ठीक है। जो स्मॉल प्रोड्यूसर उसने लिया, जब स्मॉल प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट्स बना लिए तब उन्होंने किसको सप्लाई किया? MNC को। MNC ने बेटा वहाँ पे क्या किया? अपना टैग लगाया, अपना ब्रांड लगाया, और ब्रांड में क्या हुआ? उसने अपने ब्रांड पे वो प्रोडक्ट जो था वो किसको बेच दिया? इंटरनेशनल मार्केट में, डिफरेंट मार्केट में, या इंडिया में ही बेचा। तो एक तरह से हम ये कहें, फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन्स भारतीयों ने बनाई है 600 में, वो जाके 6,000 में बिक रही है कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में। यही चीज़ MNC करती है, ये एक रूट फॉलो करती है कि वो आ रही है MNC कंट्री में, उसने लोकल प्रोड्यूसर्स को हायर किया, उनके वर्कर्स को हायर किया, प्रोडक्ट्स बनवाए बेटा। और ये उन कंपनीज़ के लिए होता है, उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को, इस मार्केटिंग वर्ल्ड में अपने आप को वो ख़त्म समझ रहे हैं, यानी फिनिश समझ रहे हैं। तो वहाँ पे ये कंपनीज़ ख़त्म होने जा रही हैं, यानी फिनिश्ड होने जा रही हैं। इन कंपनीज़ का सहारा ये MNCs बन जाती हैं। तो बेशक ब्रांड किसका है? MNC का है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयर किसको मिलेगा? वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को मिलेगा। और इस तरीके से स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इकोनॉमिकली अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाते चले जाते हैं। जहाँ पे उनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा था, बिकॉज द स्मॉल प्रोड्यूसर्स नो अबाउट द मार्केट, है ना, दे नो अबाउट द मार्केट। तो इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? MNC। फाइन बेटा। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वे और द रूट थ्रू विच MNC place order for production in small producers. Fine beta. Next we are dealing with the next route. MNCs, they set up productions jointly beta, partnership with some of the local companies. Example, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा फिएट, सोनी एरिक्सन। दीज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट कंपनीज। हाँ, हम ये कह सकते हैं ये कंपनीज टूट गई हैं। हीरो अलग वर्कआउट कर रही है, होंडा अलग, टाटा अलग है, फिएट अलग है, हम ये मान रहे हैं इस चीज़ को। मारुति अलग है, सुजुकी अलग हो गई है, फाइन। बट जब वो आई हैं बिग MNCs, तो वो भारत में आके उन्होंने, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, वो भारत में आई और भारत में आने के बाद उन्होंने
इंडिया की कंपनीज़ को चुना। ए कंपनीज, बी कंपनीज, बेसिकली सी कंपनीज, बट यूजुअली उन्होंने चुना किसको? ए और बी कंपनीज को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोर्ड अमेरिकन कंपनी कार मैन्युफैक्चरर, वो भारत में आए और आने के बाद उन्होंने किससे जॉइंट वेंचर किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ट्रक्स एंड जीप्स एक्सेट्रा। वो आई और आने के बाद उन्होंने कार को मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, अल्टीमेटली उन्होंने चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया, प्रोडक्शन हाउसेस सेटअप किए और इस तरीके से उन्होंने भारत में बेचा कार्स और इसके साथ साथ बाहरी देशों में भी उन्होंने उसको सेल आउट किया। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। हम इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट वेंचर। जॉइंट प्रोडक्शन से इट प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेन कंपनीज जब कंट्री में आती हैं तो दे केम अप विद द ह्यूज कैपिटल, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। सो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट मनी spent to buy some assets like land, building, jewelry, etc. For making profit in future, you can say, then we call it as investment. And when this investment is done by foreign company or MNC, then it is called as foreign investment. क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एस्पेक्ट्स देखने के साथ साथ उनको कैपिटल भी इन्वेस्ट करना है बेटा। और सबसे बड़ी बात, एमएनसी का सेटअप होने का मतलब ही है दैट एमएनसी हैज़ अ ह्यूज हेल्थ पावर। तभी पेप्सिको भारत में टर्न ओवर इसमें करोर्स एंड अरब्स में, मिलियंस ऑफ बिलियंस में इनका टर्न ओवर है। चाहे पेप्सी को देख ले, कोको कोला, दीज आर द कंपनीज जो भारत में रन कर रही हैं। और अभी से नहीं बेटा, काफ़ी सालों से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमएनसी जो आई है वो जॉइंट वेंचर। पहला हमने देखा कि एमएनसी ने लोकल कंपनीज़ को अपने माल को यानी कि अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर बनाने के लिए ऑर्डर प्लेस किया। दूसरे में देखा हमने कि एमएनसी ने लोकल कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर किया। थर्ड वन इज़ दैट the MNCs have a partnership with local companies for supplies and compete with the local companies or buy them. First of all, ये partnership again with the that is with the fourth one. इसके अलावा पार्टनरशिप भी है, शेयरिंग होती है बेटा। हम इतने शेयर होल्ड, जैसे 40-50, 60-40 इस तरीके के शेयर्स होते हैं। फाइन। इसके साथ साथ अगर समटाइम्स लोकल कंपनीज compete नहीं कर पाती एमएनसी से, तो एमएनसी उनको ख़रीद लेती हैं। किसको? लोकल कंपनीज़ को। एग्ज़ाम्पल अमेरिकन फूड है कारगिल फूड, आपके बुक में भी दिया है कारगिल फूड। कारगिल फूड ने भारत के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांड की कंपनी थी ऑयल में, जिसका नाम था पराग फूड। उसने पराग फूड को बाय यानी खरीद लिया। यहाँ पे जॉइंट वेंचर में क्या है? बोथ द इन्वेस्टमेंट्स हैज़ डन बाय बोथ द कंपनीज। लेकिन जॉइंट वेंचर इसमें बाय में क्या होगा? वो पूरी की पूरी तरीके से किसके अंडर में आ गई है? एमएनसी के। तो लोकल कंपनीज समटाइम्स एमएनसीज के साथ नहीं बेटा, एमएनसीज में उसका विलय हो जाता है। ठीक है, तो एमएनसीज के साथ लोकल कंपनीज जब उनका विलय होता है तब लोकल कंपनीज जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कारगिल फूड अमेरिकन कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरर थी, वो भारत में आई। उसने भारत के ऑयल मैन्युफैक्चर, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी कंपनी थी पराग फूड, उसको अपने में विलय किया। और विलय यानी कि बाय खरीदा, और ख़रीदने के साथ अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा कि पराग जो फूड था उसके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज थे, बट अंडर द नेम ऑफ कारगिल millions, 5 million pouches of oils were made in a day, were produced in a day। और इस तरीके से
जो मार्केट सेटअप था फ्रॉम द साइड ऑफ कारगिल, फ्रॉम द साइड ऑफ पराग फूड, उसका सही इस्तेमाल किसने किया? कारगिल फूड्स ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रूट था दैट इज़ योर लोकल पार्टनरशिप, एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड एज, जैसे मैंने कहा, 6 इज़ येट अनदर by local companies to expand the production. These two are the same points. So ultimately there are the three. One, by joint venture, having a partnership with the local companies. Second, by buying the local companies. And third, by placing the orders to the small producers. इस तरीके से these are the ways through which MNCs are operating their business in any country. By this, students, we have done today's lecture. कल हम लोग जो पढ़ेंगे that is foreign trade and integration of market, and you have to revise the topic thoroughly. Watch the video. Thank you, children. Have a nice day.